Hello students, once again you are welcome to our class of English and we are learning our chapter Hack Driver. So in chapter Hack Driver there is a person lawyer who tells the story. Actually lawyer is our narrator and narrator tells us the story. Actually the narrator is a very fool person. Narrator is a very fool person who always tells us that everyone should believes in appearance, but the message that our chapter is giving is that we should not believe anyone by getting off his good appearance. Okay, the narrator believes an uneducated person. और वो uneducated person कौन है बेटा? The uneducated person is our hack driver. एक गाड़ी वाला जो hack driver है, जिसको हम अनपढ़ इंसान सोचते हैं, वो अनपढ़ इंसान क्या करता है? उसको बीफूल को क्या करता है? बीफूल करता है. ओके किसको बी फूल करता है बेटा? एक ऐसे पर्सन को बी फूल्ड करता है जो कि खुद को लोअर समझता है, सिटी से आया हुआ पर्सन है. उसको ना केवल बी फूल करता है बल्कि उससे पैसे भी ऐंठ लेता है. ही इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन ऑल्सो. ठीक है, कौन? हैक ड्राइवर बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है. बिजनेसमैन होने के नाते वो एक बहुत अच्छा ट्रिक्स्टर भी है. ठीक है, ट्रिक्स्टर भी है. ये सारी क्वालिटीज़ किसके लिए हैं? फॉर आर हैक ड्राइवर के लिए हैं. ही इज़ अ गुड सोशल फेलो है. हु? आर हैक ड्राइवर इज ऑल्सो अ गुड सोशल फेलो. ओके, now what about that main character? What about our narrator? That the narrator is a very gullible person. Here we are using the word gullible. Okay, gullible means जो जल्दी से, the person who is easily taken into confidence of other, the person who believes others very easily without having any suspect. तो very gullible है. ठीक है, he is a very लो विटेड पर्सन है, बहुत ही निचले दर्जे का है दिमाग में. ऑल्दो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बट ही डजेंट पॉजेज अ लिटिल बिट ऑफ सेंस ऑफ रीजनिंग. कोई सेंस ऑफ रीजनिंग नहीं है. ही हैज़ नो सेंस ऑफ सस्पेक्टिंग एनीवन. दैट्स वाई ही डजंट डिजर्व टू बी अ लॉयर. सो इन हिज all the action to serve someone to Oliver Lutkin, he makes himself befooled by our hack driver Bill Magnuson, and that's why at last he become a source of ridicule. He become a person of being ridiculed by everyone, and he feels himself very embarrassed in presence of those villagers who made him befooled by helping Bill Magnuson in all his conspiracy. So in this way we came to know something about Bill Lutkin and Bill or Oliver Lutkin or our narrator. So we are doing our next question. The question is, what more does Bill say about Lutkin and his family? Lutkin उसकी family के बारे में हमें क्या क्या पता चलता है? If the question comes that what do you know about his mother, what do you know about his family, then you have to write the same person. Okay, so in this way द क्वेश्चन इज बिल टोल्ड लॉयर, क्योंकि सबसे पहले तो उसे एक ही इंसान मिला था, सारा डिस्क्रिप्शन ही उस एक इंसान का है. बिल टोल्ड द लॉयर दैट ही न्यू मदर ऑफ लटकिन्स. ही सेड दैट शी वॉज अ रियल टेरर. सो द फर्स्ट क्वालिटी, पहली क्वालिटी हमें क्या पता चली कि वो क्या है? एक रियल टेरर है. हाउ ही एक्सप्लेन्ड that she is a real terror? Because in one of the incident once he took a trunk to his mother. ठीक है, and then she almost took his skin off because he did not carry it very carefully. In this way he also told him that she is very tall and bulky. It means she is 9 feet tall and she is 4 feet wide. It means she is a giant, she is a monster, and she is very quick. Actually she is as quick as a cat. We can say as quick as a कैट, बिल्ली के जितनी क्विक है, यानी कि बहुत तेज़ी है उसमें. ठीक है, और क्या कहना चाहता है वो? दैट शी कुड टॉक अ लॉट. यहाँ पे वी कैन यूज़ अ वर्ड दैट शी इज़ वेरी टॉकेटिव लेडी. ओके, शी इज़ अ वेरी टॉकेटिव लेडी and she is of a loose temper lady who always got very aggressive at a very small incident. In this way she is of a very loose temper lady, a very aggressive lady. She talks to everyone in a very rude way.
In this way, he told to a narrator, that Oliver Lutkin must have heard about that someone was chasing him, and consequently he would have gone. ये उसकी क्या है, एक कल्पना है, एक उसकी इमेजिनेशन की शायद गया होगा. दैट्स वाई वी हैव यूज द वर्ड वुड हैव गोन इन टू हाइडिंग एट हिज मदर्स प्लेस. इसलिए अपने माँ के प्लेस पे, अपनी माँ के उस जगह पे जाके छिप गया होगा. वेयर हिज मदर लिव्स, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट मदर लिव्स एट 3 miles अवे इन द नॉर्थ टाउन. ठीक है, 3 miles अवे. कहाँ पे, नॉर्थ साइड में रहती है टाउन से. ओके, यस. So next is, does the narrator serve someone on that day? No, no narrator didn't serve the someone on that day. Actually only the one line is written, but you must know that it's not the answer, because in your exam the question is of 2 and 3 marks. There is no 1 mark question. Although you will get MCQs in scene passage from the extract also, but here you have to complete the answer. How? Does the narrator serve the someone on that day? No. No, narrator didn't serve the summon on that day, because he was not able to find Oliver Lutkin on that day. A hack driver led him everywhere, but he was not able to catch him. Actually, they were always after him, but were not able to catch him. But he was happy. That he had not caught Oliver Lutkin, because he met the some of the villagers who are very helpful, who are very innocent person. That's why he was happy. And because of some of the drawbacks, because of some of the misleading, he was not able to find out Oliver Lutkin. So next is, who is Lutkin? Lutkin है कौन? हैक ड्राइवर हिमसेल्फ इज लटकिन. हमें पता है लटकिन कौन है. एक्चुअली हैक ड्राइवर who calls himself Bill Magnuson is Oliver Lutkin, but he pretends himself to be the Bill Magnuson who drives a carriage. He tricks the lawyer to avoid the summon to be a witness in a case. वो क्या करता है, वो ट्रिक्स करता है. ट्रिक्स का मतलब धोखा देता है लॉयर को, ताकि उसको कोर्ट में समन ना सर्व करना पड़े, ताकि उसको कोर्ट में कोई विटनेस ना बनना पड़े, कोई गवाही ना देनी पड़े. So next we are now doing textual question which are value based. When lawyer reached New Moulin, Bill did know that he was looking for Lutkin. जब लॉयर न्यू मुलिन पहुंचता, क्या उसको पता था, किसको, बिल को पता था कि जो हमारा लॉयर है वो लटकिन को ढूंढ रहे हैं. When do you think Bill came up with his plan? कब पता चला कि बिल ने अपनी प्लानिंग कब की होगी ताकि वो लॉयर को बेफूल बनाए. एक्चुअली बेटा प्री प्लानिंग करने से नहीं पता होता कब क्या मोमेंट आ जाए. इसके लिए तो हमें क्विक विटेड होना पड़ेगा, अपने दिमाग को चारों तरफ दौड़ाना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट बिल मैग्नुसन डिड. नो, एक्चुअली बिल मैग्नुसन डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द लॉयर. कुछ भी नहीं पता था उसको लॉयर के बारे में. एक्चुअली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस दैट ही वेंट हिमसेल्फ टू बिल. ये तो केवल एक चांस की बात हुई कि सीधा वो किसके पास पहुंचा, बिल के पास पहुंचा. एंड ही इंक्वायर्ड अबाउट ऑलिवर लटकिन, और सारी इंक्वायरीज ने ऑलिवर लटकिन के बारे में कर ली. किसने, हमारे लॉयर ने. Bill at once came up with the plan. तभी उसको पता चला that a man has come here to serve someone to Oliver Lutkin, and in this way, as he didn't want to be the witness in a case, that's why he made the plan at the same time. With his quick wit, he befools him. So Bill at once came up with the plan of fooling lawyer when he was inquired by the lawyer about Lutkin. जब वो इंक्वायरी कर रहा था लॉयर के बारे, जब वो इंक्वायरी हो रही थी लॉयर के द्वारा, ठीक है, लटकिन के बारे में, तभी उसने कहानी बनाई. बिकॉज एज पर द स्टोरी ही वॉज वेरी कनिंग मैन. क्यों, क्योंकि इन द स्टोरी वी ऑल्सो केम टू नो दैट ही वॉज अ वेरी कनिंग मैन. ही इज़ अ वेरी shrewd मैन. फॉर द कनिंग वी ऑल्सो यूज द वर्ड SHREWED, shrewd. shrewd क्या होता है, वेरी कनिंग फेलो, बहुत ज़्यादा चालाक. लेकिन चालाक किस वे में, किसी को धोखा देने के लिए. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट कनिंग एंड श्रूड, नॉट वी आर कॉलिंग इट क्लेवर. सो नाउ ही हैड टू पे ऑफ मैनी पीपल, but he was not an easy fellow to catch. That's why he was always running after one thing or the another. Therefore we can say that always he was ready with a plan to befool him. Actually he is such a quick-witted person that he cooks up the story at the same time. तभी वो स्टोरी को कुक करता है, तभी उसको स्टोरी को बनाता है.
लटकिन ओपनली टेक्स द लोअर ऑल ओवर द विलेज, लटकिन हर जगह लेके घूमता है लोअर को गांव में। हाउ इज इट दैट नो वन लेट्स आउट द सीक्रेट, ये कैसे पॉसिबल है भाई कि पूरे गांव में कोई भी उसको सच नहीं बताता कि जिसके साथ घूम रहा है वही तो ओलिवर लटकिन है, ठीक है। कैन यू फाइंड अदर सच सटल वेज इन विच लटकिन मैनिपुलेट द टूर, क्या आप ऐसे कुछ दूसरे, सटल का मतलब क्या होता है बेटा, वेरी क्लेवर, सटल मतलब क्लेवर, क्या आप दूसरे चालाकी भरे तरीके बता सकते हो जिससे लटकिन ने इस टूर को मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट मतलब धोखे से बदल देना, ठीक है, चीज़ों को बदल देना होता है मैनिपुलेट करना। तो आपको कैसे पता चला? Actually, we came to know that Bill, who is the head driver, who calls himself Bill Magnuson, was a very cunning fellow. He is such a shrewd person that he cooked up a story for the lawyer that Lutkin would run away if saw a man dressed like a lawyer inquiring about him. एकदम से कहानी बना दी उसने लॉयर के लिए कि अगर लटकिन भाग जाएगा उसको पता चलेगा कि एक आदमी जो वो लॉयर के कपड़ों में है वो उसके बारे में इंक्वायरी करता घूम रहा है, मतलब उसको पहले डरा दिया। सो ही सजेस्टेड हिम टू स्टे बिहाइंड, इसलिए क्या सजेस्ट किया कि आई एम योर वेल विशर एंड आई विल डू वर्क इन प्लेस ऑफ यू, सो दैट्स वाई आई विल फर्स्ट गो एंड आस्क फॉर यू एंड यू विल स्टे बिहाइंड मी। इट वॉज लटकिन हु यूज टू गो इन टू द वेरियस शॉप्स फर्स्ट, और इसीलिए ये लटकिन ही था जो हर दुकान पे पहले खुद जाता है। ड्यू टू दिस नो वन कुड एबल टू, और इसीलिए कोई भी नहीं पहचान पाता कि कौन है वहाँ पे, कोई भी उस सच को नहीं बता पाता। एज ही वुड कम अप विद अनदर स्टोरी, अगर समझो कोई सच बता भी देता, सपोज इफ समवन टेल्स हिम द ट्रुथ देन ही वुड कम अप विद अनदर स्टोरी, कोई और कहानी बना देता उन विलेजर के लिए, एंड मे टेक देम इन कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस में ले लेता कि भाई ठीक है नहीं बताना तुम्हें, क्योंकि वो बातें करने में तो माहिर है ही। इवन when they went to search for Lutkin at the mother's place, he described his mother as very horrible, and there also he introduced himself as Bill, the head driver to his mother, ठीक है। जब वो अपनी माँ के पास जाता है, अपनी माँ की जगह पे जाता है, उसके फार्म हाउस पे जाता है, वहाँ पे क्या बताता है, वहाँ पे अपनी माँ को डिस्क्राइब करता है कि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा डरावनी भयानक है, ताकि लॉयर आगे बढ़ के कुछ पूछ ना सके लेडी से, उसको पहले डरा देता है। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज बिल मैग्नुसन द हेड ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, सो दैट द मदर कुड गेट इट दैट शी शुड नॉट रिवील द ट्रूथ in front of that stranger, okay, and that's why he informed her about the lawyer that he was searching for Lutkins, and the mother at once got the idea that she should not reveal him, okay, and in this way mother also help her to help him not to reveal his identity. She knew it very well that she was not supposed to disclose anything to the lawyer, कि lawyer को कुछ भी नहीं बताना है, ये उसको अच्छे से पता था। Why do you think Lutkin's neighbors were anxious to meet the lawyer? आपको क्या लगता है लटकिन के नेबर लॉयर से मिलने के लिए क्यों चिंतित थे? भाई कुछ तो नेबर उससे मिल चुके थे, जैसे गस्टोव था, बार्बर था, फ्रिड्स था, ग्रे शॉप थी, सॉरी जो ग्रे बार्बर था वो सब तो मिल चुके थे, लेकिन कुछ नेबर्स ऐसे भी थे जो उससे मिलना चाहते थे, बहुत चिंता कर रहे थे कि भाई एक बार तो ऐसे इंसान से मिला दो। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मूर्ख, ऐसे पागल इंसान को तो मिलना ही चाहते थे जो लॉयर हो कि खुद कुछ नहीं करना चाहता, सस्पेक्ट नहीं करता और दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेता है। एक्चुअली लटकिन टुक द लॉयर ऑल ओवर द टाउन इन सर्च ऑफ लटकिन हिमसेल्फ, लटकिन खुद ही उसको सारे गांव में घुमाता हुआ घूम रहे हैं, और किसकी खोज में? खुद लटकिन की ही खोज में। ही वॉज एबल टू फूल लॉयर विद हिज कुकड अप स्टोरीज, अपनी रेडीमेड स्टोरीज, यानी कि जो उसने ताज़ा ताज़ा बनाई उस स्टोरीज से लॉयर को क्या करता है? बीफूल बनाता है, ठीक है। लटकिन अबाउट लटकिन एंड अदर विलेजर, लटकिन के बारे में भी झूठ बोलता है और दूसरे गांव वालों को जो डिस्क्रिप्शन बताता है वो भी झूठा डिस्क्रिप्शन देता है। वाई? सो दैट द फेलो विल गेट टू नो दैट ही इज़ वेरी सिंपल, ही इज़ वेरी इनोसेंट एंड विलेजर्स आर ऑल्सो वेरी इनोसेंट पीपल। दैट्स वाई ही कुक्ड अप स्टोरीज टू मेक हिम बिलीव दैट दे वर वेरी सिंपल एंड इनोसेंट पीपल। All this must have become the talk of town as how a man could feel the other man in his own search. शीघ्र ही लगता है सारे गांव में भी ये बातें फैल गई होंगी। कौन सी? कि एक आदमी है जिसको मूर्ख बनाया जा सकता है, खुद उसी की सर्च में, खुद उसी के काम में उसी इंसान को मूर्ख बना दो। एवरीवन हैड सीन दिस हैपनिंग, सबने तो देख लिया था, लेकिन कुछ और भी बच गए थे। So Lutkin's neighbors were keen to see him as they missed seeing him that day. क्योंकि कुछ some of the neighbors of Lutkin's were keen to see him because they missed seeing him that day. कुछ neighbors ऐसे बच गए थे जिन्होंने उसको देखा ही नहीं था। Okay.
So next question is, after his first day's experience with the driver, the lawyer thinks of returning to New Mullen to practice law. Do you think he would have reconsidered this idea after his second visit? भाई पहली बार जब हेक ड्राइवर ने विजिट की तो क्या बोला, क्या सोचा, डिसाइड किया उसने कि वापस कोई बात नहीं, अगर मुझे हेक ड्राइवर नहीं मिला तो ना सही, लेकिन मैं वापस आऊँगा और यहीं पे अपनी प्रैक्टिस शुरू करूँगा. ठीक है. डू यू थिंक ही वुड हैव रिकन्सिडर्ड दिस आइडिया? आपको क्या लगता है, उसने अपने इस आइडिया को दोबारा रीथिंक किया, रिकन्सिडर किया जब दूसरी विजिट पे आया तब? बिल्कुल किया होगा. क्यों? पहली बार तो उसको मूर्ख बनाया गया, उसको पता चल गया हाँ कि तेरे को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, इसलिए उसने दोबारा सोचा कि भाई यहाँ की प्रैक्टिस करनी भी है कि नहीं करनी, क्योंकि दीज आर सच द cunning and clever and shrewd fellows that they even duped him who is think to be a good lawyer. ठीक है. That's why he reconsidered his idea of practicing law at New Mullins. He had taken this decision, सबसे पहले he had taken this decision because he was impressed by the noble and friendly nature of Bill. क्योंकि बिल से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था. ठीक है. He glowed with the warmth of his affection that he at once believed blindly whatever is told by Bill or हेक ड्राइवर. ही फाउंड द विलेजर्स वर वेरी नाइस. उसको जो बातें बिल ने बताई उसको सुन के लगा कि विलेजर्स कितने नाइस पीपल हैं, कितने इनोसेंट, कितने काइंड हैं. दे वर फार बेटर देन दोज सिटी पीपल्स. उन सिटी वालों से तो कहीं कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, जो बिल्कुल भी हम्बल नहीं है, अच्छे इंसान नहीं है. लेकिन ये सब तो था फर्स्ट विजिट पे. सो ऑल दिस डिस्क्रिप्शन इज अबाउट हिज first visit. Now what happened about his second visit? But on his second visit, when he realized that Lutkin had befooled him, he would rethink over his idea. जब उसको पता चला कि लटकिन ने उसको मूर्ख बनाया है, एक्चुअली बिल मैग्नुसन इज Oliver Lutkin himself, then he had to reconsider this idea of coming back to New Mullen to start his lawyer practice there. Then he decided not to settle in a village in New Mullen where the people made him fool. Okay, so in this way beta, please do all these questions, and if you have any doubt then